Hello students, my name is Gargi and in this video lecture we are going to continue our subject verb agreement. So in lecture 1 we completed around 8 rules and now we are going to continue after that. Okay, so subject verb agreement. Next rule is plural number referring to distances, weights, amount of money. When we have a sum of any distance, right, or maybe heights, weights, then the verb we put after that is always in the singular. For example, 5 kilograms dash not a heavy weight. Now this 5 kilograms हम कैसे बात कर रहे हैं, इसके एक साथ बात कर रहे हैं, like it is considered as a unit. like 5 kilograms एक साथ जो 5 kilograms है, it's not a heavy weight. So the verb we'll put is in the singular. That's what happens with distances also, ठीक है, and that's what happens with weights, just like we did here. Amounts of money, अगर कोई amount of money है एक साथ तो उसके लिए भी हम verb कौन सी लेते हैं, singular लेते हैं, ठीक है. Then we have our next rule, a number of and the number of. And let me tell you, they both take different verbs. अब singular किसके साथ लगता है, plural किसके साथ लगता है. So when we talk about the number of, now this the number of, the number of हमें क्या शो करता है, एक definite amount शो करता है, एक definite number शो करता है. Because of this the, जो हमारा definite article है, ये क्या करता है, एक डेफिनेट नंबर को शो करता है कि जो नंबर है ना, इट्स काइंड ऑफ फिक्स्ड, इट्स डेफिनेट, ठीक है. बट दिस अ नंबर ऑफ, ये किसको शो करता है, ये शो करता है दैट समथिंग इज मेनी इन नंबर, ठीक है. कोई चीज बहुत ज्यादा है, मेनी है, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कितना नंबर है, बट इसमें हमें एक डेफिनेट नंबर होता है. ये किसको शो करता है, एक डेफिनेट नंबर को शो करता है, ठीक है. So because of that, a number of के साथ तो हम verb plural लगाते हैं और the number of के साथ हम verb singular लगाते हैं. For example, a number of English books. अब a number of है तो ये क्या शो कर रहा है कि there are many books. English की बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है. So are available in library. बहुत सारी इंग्लिश की किताबें हैं जो लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं. तो a number of के साथ हम verb कौन सी लगाते हैं, plural लगाते हैं. And when we talk about the number of candidate appeared in exams this year. अब एक definite number है ना हमारे पास, एक statistics है कि the number of candidates, एक particular जो number आया हमारे पास candidates का, वो कैसा था, बहुत ज़्यादा था. तो हम यहाँ पे verb कैसी लगाएंगे, singular लगाएंगे. So the number of candidates appeared in the exam was large. Okay. So with a number of which shows many, इसके साथ हम verb plural लगाते हैं, and the number of which shows a definite number, we put the verb in singular. Okay. Then we have few, a few, both, many, several. They are plural. They are considered plural. Obviously both मैंने बोला, अगर if I say both, then this and this both दो हो गए, singular कैसी रहेगा, it will be automatically plural, right. Several काफी सारे, both, many, a few, few, हम few, a few, the few, determiners में भी study that, few, a few, the few. So किसको show करता है, वो कोई चीज ज्यादा amount में है, like it's not singular, obviously it's plural. So if they show something that is plural, तो हम verb भी कौन सी लगाएंगे उसमें, plural लगाएंगे. So for example, few dash left alive after the flood. So few were left alive. We will put the verb in plural because we consider few, a few, both, many, several, all these plural, and that's why we put the verb in plural. Okay, got it? Then we have collective nouns. Now collective nouns are a bit tricky because they take singular verb also and they take plural verb also. दोनों लग सकती हैं उनके साथ, singular भी लग सकती है, plural भी लग सकती है. कैसे लग सकती है कि जब collective noun की हम बात करते हैं, so collective noun is a collection obviously, like it's a group. So group can be divided and group can be as considered as a whole, right. So जब
कलेक्टिव नाउन्स को एज अ होल हम लेते हैं या एज अ यूनिट हम उसकी बात करते हैं, दैट द कलेक्शन इज अ यूनिट, एक साथ है, तो हम उसमें वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। बट इफ द कलेक्शन इज डिवाइडेड फॉर सम रीजन, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अगर वो कलेक्शन डिवाइड हो गया है दो पार्ट्स में, राइट, सो हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी डैश इनैनिमसली टेकन डैश डिसीजन। अब कमिटी ने, इससे हमें क्या सेंस निकल के आ रहा है इस सेंटेंस से? इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हाट इज द सेंस बिहाइंड द सेंटेंस। सो द सेंस बिहाइंड द सेंटेंस इज दैट द कमिटी टुक द डिसीजन, उसे कमिटी ने डिसीजन लिया और उन्होंने एक साथ लिया, लाइक एज ए यूनिट, ठीक है, उन्होंने सबने मिलके एक ही डिसीजन लिया साथ में। सो यहाँ पे कमिटी क्या है, एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, दे आर वर्किंग एज सिंगल यूनिट। तो यहाँ पे हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। सो द कमिटी वॉज इनैनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, सॉरी, द कमिटी हैज यूनैनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। तो वर्ब हमने कौन सी लगाई, सिंगुलर लगाई, यहाँ पे ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर लगाई। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस, द कमिटी डैश डिवाइडेड ओवर द प्रपोजल। अब कमिटी क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक बोल रहे हैं हाँ, एक बोल रहे हैं ना, एक ग्रुप बोल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कमिटी डैश डिवाइडेड ओवर द प्रपोजल, कमिटी क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, दो ग्रुप्स बन गए, एक बोल रहे हैं कि प्रपोजल अच्छा है, एक बोल रहे हैं प्रपोजल बुरा है। तो अब वो जो डिवीजन हो गया है उसकी वजह से वो सिंगुलर तो रहे नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, अब प्लूरल हो जाएंगे। तो हम वर्ब भी कौन सी लगाएंगे इसमें, फिर प्लूरल लगाएंगे। द कमिटी वर डिवाइडेड ओवर द प्रपोजल, कमिटी क्या हो गई थी, प्रपोजल पे डिवाइड हो गई थी, ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन्स कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब according to the sense of the sentence, according to what you are trying to say, how you want to represent that collective noun। कि अगर वो collective noun एक unit की तरह काम कर रहा है, then it will take singular verb। अगर वो divide हो गया है for some reason, then it will take plural verb, ठीक है। So understood, distances, weight, amount of money के साथ हम verb singular लगाएंगे। a number of, the number of में a number of many को show करता है, verb प्लूरल लगेगी, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। देन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, दे आर ऑलवेज प्लूरल एंड दे टेक अ प्लूरल वर्ब विद देम। कलेक्टिव नाउन्स में डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, इट कैन टेक अ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब, कोई भी वर्ब ले सकता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट रूल्स। ओके, आवर नेक्स्ट रूल इज वर्ब शुड अग्री विद इट्स सब्जेक्ट एंड नॉट द कॉम्प्लीमेंट। इफ आवर सेंटेंस इज समथिंग लाइक दिस, our only guide dash the stars. Now in this sentence, our only guide dash the stars. So the verb should agree with the subject and not the complement. अभी verb को हमें subject से agree कराना है, complement से agree नहीं कराना है, okay? Verb subject से agree करेगी, subject क्या है यहाँ पे, our only guide. Stars हमारा subject नहीं है, it's a complement और उसको complement से agree नहीं कराना है, okay? So our only guide was क्यों आया, ओनली गाइड की वजह से। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस, स्टार्स डैश आर ओनली गाइड, अभी यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, सो आर वर्ब विल बी पुट अकॉर्डिंगली। तो स्टार्स वर आर ओनली गाइड, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है अब यहाँ पे, तो कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर में बट सब्जेक्ट तो प्लूरल है हमारा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस it will take the verb in plural, and here our only guide, our subject is in the singular, that's why our verb will be singular, ठीक है। So the rule says that the verb should agree with its subject and not with the complement. Complement के साथ हमें verb को agree नहीं कराना है, हमें हमारे subject के साथ ही verb को agree कराना है in every condition. Okay. Next is much more, little less. Now much more, little less, they will take a singular verb. Now why will they take a singular verb? Because they are used with uncountable nouns, or uncountable nouns are not countable obviously. So because of that
अगर हम किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते तो हम उसे सिंगुलर प्लूरल नहीं बता सकते, राइट? तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है, वी नो दैट, करेक्ट? जैसे हमने इसके पहले फ्यू वाला रूल किया था एक, उसमें वी सेड दैट इट टेक्स प्लूरल वर्ब बिकॉज दे आर प्लूरल, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं। अब काउंटेबल नाउन्स के साथ लगेंगे अगर, और वी कैन काउंट देम, और वो किसी को सिंगुलर ना शो करके किसी ज़्यादा चीज़ को शो करें, दे आर शोइंग दैट समथिंग इज इन द प्लूरल, सो ऑब्वियसली वो प्लूरल में लगेगा। इफ समथिंग इज काउंटेबल एंड इट इज शोइंग अस दैट it's in a particular amount, like it's not singular, it's plural, so verb definitely plural लगेगा. But here we can see that these four, they are always used with uncountable nouns, and uncountable nouns they take a singular verb, so with them, with these we use singular verb. For example, much of the sugar is impure, ठीक है? क्या लगेगा यहाँ पे? is लगेगा, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, शुगर इज अनकाउंटेबल, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट वी हैव सम, एनी, नन, ऑलमोस्ट. नाउ सम, एनी, नन, ऑलमोस्ट, दे कैन टेक एनी वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल. कैसे? सम ऑफ द फूड, नाउ सम दोनों जगह सम आ रहा है, ठीक है? अब सम तो है बट डिपेंड करता है वर्ब इसके ऊपर, कि सम के बाद जो नाउन है ना उस पे डिपेंड करेगी कि वर्ब कौन सी आएगी, बिकॉज सम और एनी, नन, ऑलमोस्ट ये सब सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं, ठीक है? सो सम ऑफ द फूड, अब सम ऑफ द फूड इज अनकाउंटेबल, ठीक है? सो सम ऑफ द फूड इज कोल्ड. बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस, सम ऑफ द वेजिटेबल्स, अब वेजिटेबल्स तो काउंटेबल है, करेक्ट? सो सम ऑफ द वेजिटेबल्स आर रॉटन. तो सम हमने दोनों के साथ लगाया, काउंटेबल के साथ भी अनकाउंटेबल के साथ भी, ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी पुट आवर वर्ब. काउंटेबल के साथ तो हमने प्लूरल लगा दिया, ठीक है? बट अनकाउंटेबल के साथ तो हम सिंगुलर ही लगाएंगे. जैसे यहाँ पे अनकाउंटेबल है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है, जैसे यहाँ पे भी अनकाउंटेबल है तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे. अंडरस्टूड? सो विद दीज we can put singular or plural verb depending on they are what they are followed by, ठीक है? Next and our last rule of subject verb agreement is noun plus preposition plus noun. अगर हमारा sentence structure कुछ ऐसा है, like noun, preposition, noun. अब now we have two nouns, हमारे पास दो noun आ गया, ठीक है? तो अब हम subject दो नाउन आ गया तो अब कंफ्यूजन होगा ना कि किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है. फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स. अब कंडीशन और फार्मर्स दो नाउन है हमारे पास, ठीक है? सो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, बट अगर हम फार्मर्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो वर्ब प्लूरल लगेगा, करेक्ट? तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है? तो इस सिचुएशन में हमें ये करना है कि हमारी वर्ब लगेगी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग. So the condition of the farmers is pitiable. So if I say the quality of the apples, now the quality of the apples, quality और apples दो नाउन है हमारे पास, तो quality के अकॉर्डिंग लगाओगे, apples के अकॉर्डिंग लगाओगे? quality के अकॉर्डिंग लगाओगे क्योंकि फर्स्ट नाउन तो वही है, ठीक है? तो the quality of the apples is good. तो हम वर्ब कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है? So according to the first noun we will put our verb. Okay, so I hope you understood all the rules and all the examples, and we have finished the lecture, and thank you.